A very good afternoon to all of you. I welcome you to this session, and I'm very thankful to you for having spared your time out and you have come to attend this. I don't know whether it is going to be useful to you or not, but I'll try to make it as useful as possible for you. See, we all know that we have been faced with unprecedented and unanticipated challenges in this pandemic of COVID-19. And to overcome these challenges, it requires a collective effort from all of us. The government is doing its job. The government is trying its level best to do whatever it is, whatever there it is in their hands to overcome this pandemic. But it needs our efforts also in this direction. So, what efforts we need to make are that we need to do certain things so as to save ourselves from this COVID-19 pandemic, so that we do not fall prey to it and the burden of the disease does not get increased on the government. It does not have to take care of large number of COVID positive patients and then die down because of the burden of that. Okay, so we need to do a lot of things in that respect. But before going into the nitty-gritty of what we should be doing and what is required of us, I would like to tell you something about what is COVID-19. See, most of the parents, you are class 12 parents, I mean, your children are in class 12, and I have talked to most of you. And while I was talking to you, while conducting the online screening, health screening of the children, I always used to ask you in the end, कोई घर में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है या नहीं, या कोरोना तो नहीं हुआ आपके घर में किसी को. So the terminology that I was using there was wrong. It is not that I didn't know what I should be using, but only thing is that people were familiar with that terminology only. They were just familiar with corona as being a disease, whereas actually it is not. Corona is the name of the virus, and the actual name of the virus is SARS-CoV-2 virus, which is a beta group of coronavirus. Okay, so COVID is the name of the disease. COVID-19, in fact, is the name of the disease. Co stands for corona in COVID. COVID की spelling क्या है? COVID-19. Okay, I'll try to keep this conversation in English. I will not be speaking totally in English. मैं बीच-बीच में हिंदी भी use करूँगी ताकि आप सबको समझ आ सके. तो COVID का full form क्या है? CO stands for corona, VI stands for virus, and D stands for disease. 19 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये कोरोना वायरस जब जन्मा उस टाइम पे हम 2019 में थे. अगर आपको ठीक से याद हो तो ये कोरोना वायरस की जो डिजीज था, यानी कि कोविड-19 डिजीज जो है, ये ओरिजिनेट हुआ चाइना में, और ये कहा गया कि ये ओरिजिनली बैट्स यानी चमगादड़ों की डिजीज है जो कि ह्यूमंस में स्प्रेड कर रही है. और ये स्प्रेड कहां से हुई थी? चाइना की वेट मार्केट से. अब ये तो हमें समझ आ गया कि कोरोना उस वायरस का नाम है और कोविड-19 उस डिजीज का नाम है. अब समझते हैं ये वायरस दिखता कैसे है. हर चीज को देख के समझना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि जैसे आप वीडियो देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ आता है rather than just reading text. अगर खाली टेक्स्ट पढ़ते हैं तो वो इतना समझ नहीं आता जितना वीडियो देखने से समझ आता है. तो कोरोना वायरस जो है एक तरह का वायरस है जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है. इसको मैं कुछ अगर लेमैन टर्म में एक्सप्लेन करूं, हमारे अंदर डीएनए होता है और वो डीएनए डिसाइड करता है कि हम किस तरह के इंसान दिखेंगे और बनेंगे. जैसे कि कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, किसी की आंखें हरी होती हैं, किसी की नीली होती हैं, कम होती हैं, लेकिन ब्राउन होती हैं, काली होती हैं. तो ये सब अलग अलग फीचर्स लोगों के अंदर क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट तरह का डीएनए है. अब इसी तरह का, जिस तरह का जेनेटिक मटेरियल डीएनए, वैसे ही वायरस में एक जेनेटिक मटेरियल है जिसको कहते हैं आरएनए. तो ये आरएनए वायरस है. हो जाएगा 2 मिनट. वायरस को sir, can you mute? Somebody is not mute. Okay. I've done. Okay. So the virus, which is a single strand RNA virus, has got. हम क्या करते हैं?
हमारे शरीर के अंदर डीएनए, लेकिन हम ऊपर से कपड़े पहन लेते हैं। हमारी चमड़ी भी है, अंदर है डीएनए तो सेल्स की, ऊपर से हमारी चमड़ी है, ऊपर से हम कपड़े पहन लेते हैं। इसी तरीके से इस वायरस के जो आरएनए है उसके आसपास 2 लिपिड लेयर्स हैं। मैं ये क्यों समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये आपको आगे समझ आएगा जब मैं प्रिकॉशंस की बात करूंगी। लिपिड लेयर का मतलब क्या होता है, वो फैट की लेयर्स हैं, 2 लेयर्स हैं। जैसे हम कपड़े पहनने से पहले बनियान पहनते हैं, फिर ऊपर से कपड़े पहनते हैं, तो इस वायरस के ऊपर भी 2 लेयर्स हैं, एक बनियान है, एक कमीज है या शर्ट है, और उस शर्ट के ऊपर बटन लगे होते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर बटन लगे हैं, ऐसी वायरस की शर्ट के ऊपर बटन लगे होते हैं, जिनको हम स्पाइक प्रोटीन्स कहते हैं। अब इन्हीं स्पाइक प्रोटीन से ये ऐसे 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 तिनकों की तरह निकल रहे होते हैं, वायरस की तरह, और ये उसको एक क्राउन का रूप दे देते हैं, तभी इसको कोरोना बोलते हैं। कोरोना का मतलब होता है क्राउन। तो ये कोरोना का वायरस जो है, ये एक क्राउन की तरह दिखता है, और इन्हीं स्पाइक प्रोटीन से वो जाके इंसान के अंदर जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं उनके साथ जाके लॉक इन की तरह फिट हो जाता है, और उनके सेल्स को इन्फेक्ट कर देता है। अब समझते हैं मैंने लिपिड लेयर की क्यों बात करी। लिपिड लेयर क्या होता है, मैंने समझाया, ये फैट लेयर होता है। तो जब भी अगर यहाँ पर देयर आर लॉट्स ऑफ फीमेल्स आई कैन सी, तो जो फीमेल्स हैं आजकल, आई एम श्योर आप सबको घर का काम खुद ही करना पड़ रहा होगा, बर्तन सफाई एवरीथिंग। तो जब वो ग्रीस से सने हुए बर्तन जो है, जब हम खाना खाते हैं और उसमें घी डला होता है, और वो घी जब प्लेट पे लगा रह जाता है, तो उसको धोने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है, हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, एक गर्म पानी और एक साबुन, और हम उसको स्क्रब करते हैं तो वो जितना ग्रीस है वो निकल जाता है और प्लेट साफ हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम इस वायरस को मारना चाहते हैं, इस वायरस को खत्म करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसके आसपास की लिपिड लेयर है, लिपिड यानी कि जो फैट की लेयर है, उसे हमें तोड़ना होगा, ताकि उसका mRNA जो है, जो RNA है, वो एक्सपोज हो जाए और वो एक कंप्लीट एंटिटी ना रह के बिखर जाए। तो उस लिपिड लेयर को तोड़ने का तरीका क्या है, जैसे हमने प्लेट साफ करने के लिए साबुन और गर्म पानी का इस्तेमाल किया, तो हीट एंड सोप दोनों के दोनों इस वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं। और अगर कोशिश करें सोचने की, जब आपके हाथ जो है ग्रीस से सने होते हैं, तो और क्या क्या तरीका आप यूज करते हैं अपने हाथों को साफ करने के लिए। अगर पुराने जमाने में जाए तो राख से भी हाथ साफ हो जाते थे, और अगर हम देखें अल्कोहल जो हमारे आजकल सैनिटाइजर्स में डला हुआ है, जो हम कहते हैं 60% से ज्यादा जिसके अंदर अल्कोहल है, अगर उस सैनिटाइजर को यूज करेंगे तो आपका वायरस जो है खत्म हो जाएगा, आप वायरस को मार सकेंगे। तो वही हमने यहाँ पर भी करना है। तो ये सारी चीजें हैं, राख, अल्कोहल, देन सोप एंड टू मच ऑफ हीट। अब ये वायरस जो है नॉर्मल ग्रीस की तरह तो है नहीं, तो इसकी ग्रीस को खत्म करने के लिए, इसके लेयर को खत्म करने के लिए वी नीड हाई हीट। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम धूप में खड़े हो जाएं तो हमारा वायरस खत्म हो जाएगा, या हम थोड़ी सी आंच के पास अपने हाथ ले जाएं तो खत्म हो जाएगा। उसको हाई डिग्री टेम्परेचर चाहिए खत्म होने के लिए, ठीक है। और कुछ यही कारण है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी रेज हो जाता है जब हम इस वायरस से इन्फेक्ट होते हैं। तो बॉडी का टेम्परेचर किस लिए रेज हो रहा है, दैट इज अ रिफ्रैक्टरी मैकेनिज्म टू किल द वायरस, ठीक है। अब हमने समझ ली कि कोरोना वायरस हमारा दिखता कैसे है और दिखना जानना जरूरी क्यों है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर जानने के बाद हमें ये जानना चाहिए कि हमें होता कैसे, उससे भी हमें समझ आ जाएगा कि हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अब इसका ट्रांसमिशन 2 तरीके से होता है। पहला ट्रांसमिशन है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन मतलब इंसान से इंसान को ट्रांसमिशन। अब उस बात को छोड़ दीजिए सोचना कि बैट से ह्यूमन की तरफ आया, अब तो ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एक जो ट्रांसमिशन का मोड है वो इंसान से दूसरे इंसान को होना है, और दूसरा है सरफेस टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, यानी कि अगर कोई सरफेस पे, कोई सतह पर अगर वो वायरस है तो वहां से भी हमारे शरीर के अंदर एंटर कर सकता है। और शरीर के अंदर एंटर करने के लिए कौन कौन सी जगह है जहां से वो एंटर कर सकता है। पहली जगह है आंखें, यानी कि जहां पर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, आंख से, नाक से, मुंह से, ये 3 मेजर जगह हैं जहां से ये वायरस हमारे अंदर एंटर कर सकता है। अब हमने समझ लिया इसका ट्रांसमिशन। अब इस ट्रांसमिशन की रेलेवेंस को समझते हैं, प्रिकॉशंस के अंदर क्या है।
अब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, तो हमें क्या करना है? अब ह्यूमन से तो हम एक दूसरे से दूर तो रह नहीं सकते बिल्कुल, ये तो हम कर ही नहीं सकते कि एक कमरे में बंद हो जाए और किसी से ना मिले, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म हमारी सरकार ने भी लॉकडाउन करके देखा कि शायद इसका ट्रांसमिशन खत्म हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं, बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन लोग नहीं रुके या कुछ ऐसे तत्व आ गए जिन्होंने इसको स्प्रेड करने की कोशिश करी। हम उसकी निटिग्रिटी में नहीं जाते, लेकिन वो नहीं हो पाया। लॉकडाउन ने हमें कुछ हेल्प नहीं किया, इनफैक्ट हमारी इकोनॉमी काफी नीचे होती गई। इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया ये वायरस तो जाने वाला है नहीं, खत्म होने वाला है नहीं, हमें ही इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। और इसलिए धीरे धीरे करके फेज्ड मैनर में हर चीज को खोलना शुरू किया। अब जब खुलनी शुरू हुई चीजें, तो क्या हुआ? अब लेटेस्ट कल का ही आप इंसिडेंट देख लीजिए। आपको मालूम है दिल्ली में कितने केस हुए? कल के दिन में 8,000 केस हुए। मैं इनफैक्ट एक स्टेट कोविड हेल्पलाइन जो है उस पर काम कर रही हूँ। जो स्टेट की कोविड हेल्पलाइन है, मैं उस पर एक वॉलंटियर डॉक्टर हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी टिकट्स इशू होती हुई नहीं देखी अभी तक, जितने 6-7 महीने हुए जो मुझे टिकट्स इशू हो रही थी और जो ग्रुप में दिखता था कि इतनी टिकट्स पेंडिंग है। येस्टरडे इट शोड 6,000 टिकट्स पेंडिंग। इतने लोग वेट कर रहे थे जिनको सेवाएं नहीं मिल पा रही थी सरकार की। अब इतना ज्यादा अगर इंसिडेंस बढ़ जाएगा कोविड को, तो सरकार भी बेचारी क्या करेगी? इतनी मैन पावर तो है नहीं, इतने डॉक्टर्स तो है नहीं, और डॉक्टर्स सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनका जो है कांटेक्ट जो है कोविड पेशेंट से ज्यादा है। इसलिए उनको 14 दिन बाद 14 दिन के लिए क्वारंटाइन पे भी रहना पड़ रहा है। तो इसलिए वॉलंटियर डॉक्टर्स की टीम बनी, जो डॉक्टर्स खुद अपनी इच्छा से इसके साथ जुड़ना चाहते थे, उनकी ट्रेनिंग की गई और उनको इस हेल्पलाइन के साथ जोड़ा गया। सो आई एम इन दैट हेल्पलाइन। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज कि नंबर्स इतनी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गए हैं क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया, और लॉकडाउन खोलने से जनता को लगने लगा कि शायद कोई केसेस ही नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए सरकार खोले जा रही। एक्चुअली वो रीजन नहीं था सरकार का खोलने का। सरकार ने खोला इसलिए कि उन्होंने समझा दिया कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम अपने आप को सेफ रखें। ठीक है, सरकार ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। वो हमें सुविधाएं प्रोवाइड कर सकता है, वो अस्पताल प्रोवाइड कर सकता है, वो डॉक्टर प्रोवाइड कर सकता है, उसके बियॉन्ड सरकार कुछ नहीं कर सकती है। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में है, जो इनफैक्ट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इतने नंबर्स इतने एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। लोग बड़े लिबरल हो गए हैं, बाहर चले जाते हैं और बाहर जाके भूल गए हैं 2 गज दूरी है बहुत जरूरी। सालों से अमिताभ बच्चन जी, सालों नहीं कहूंगी, आप साल ही लग रहे हैं, 6 महीने भी ऐसे लगता है साल बीत गए हैं। तो इतने समय से सरकार बार बार बताई जा रही है कि 2 गज दूरी है जरूरी, लेकिन कौन फॉलो कर रहा है? कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। आप ग्रोसरी शॉप पे चले जाओ, आप बैंक में चले जाओ, आप कहीं पर मार्केट में चले जाओ, आपको कहीं नहीं मिलेगा लोग जो है 6 फुट की दूरी पे खड़े, सब साथ साथ लगे हुए खड़े हुए चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इनफैक्ट टीवी पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा। कल मैं न्यूज देख रही थी बिहार के इलेक्शंस के बारे में, वो स्पॉट्स बना रखे हैं कि 6-6 फुट पे स्पॉट्स बने हुए हैं, अगर आप इलेक्शन के लिए अपना वोट देने के लिए जा रहे हैं तो इतनी दूरी पे खड़ी हुई है, लेकिन सारी जनता एक दूसरे के साथ ही खड़ी हुई है। पता नहीं क्या मजा आता है। तो ये सब आपके हाथ में है कि आपको 2 गज की दूरी यानी कि 6 फुट की दूरी मेंटेन करके रखनी है। और स्पेशली इस टाइम पे जब दिल्ली जो है सबसे ज्यादा पोल्यूशन देख रही है, स्मॉग देख रही है, तो इनफैक्ट वो स्मॉग के कारण क्या हो रहा है, वो जो वायरस है वो 6 फुट से दूर जा रहा है स्मॉग के साथ, इट इज बीइंग कैरिड अवे विद द स्मॉग। तो वो 6 फुट की दूरी भी इतनी कामयाब नहीं हो रही है, पर फिर भी अगर 6 फुट पे खड़े होंगे तो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बचा तो सकेंगे ही। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि 6 फुट की दूरी। और दूसरा, ये मैं ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रही हूँ कि हम अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं। सेव करने का तरीका ये है कि हम 6 फुट दूर खड़े हैं। और दूसरा, जो हमारा कॉन्टैक्ट टाइम है, कॉन्टैक्ट टाइम का मतलब है हमारा बातचीत का टाइम, कितनी देर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं या किसी के साथ खड़े हुए हैं या बिता रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट टाइम हमारा 15 मिनट से कम होना चाहिए। 15 मिनट से कम के कॉन्टैक्ट टाइम में चांसेस हैं कि
अपने आप को बचा सके अगर दूसरा पर्सन कोविड पॉजिटिव है भी तो। आजकल क्या हो रहा है, हमें पता भी नहीं लग रहा कौन कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक कोविड पेशेंट्स है, टेस्ट भी नहीं करवाया, कोई सिम्टम्स भी नहीं आ रहे। जब सिम्टम्स नहीं आ रहे तो बेचारे टेस्ट कहाँ से कराएंगे, और जब टेस्ट नहीं करा रहे तो उनको पता कैसे लगेगा कि वो कोविड पॉजिटिव है। और आप उनके साथ बातें कर रहे हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, और उसमें चांसेस हैं कि आप भी कोविड पॉजिटिव हो जाए। पर ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिम्टम्स ना आए, हो सकता है आपको बहुत बुरी तरह सिम्टम्स आ जाए, बहुत ज्यादा सिम्टम्स आ जाए। आपने सुना होगा, मैं अभी सिम्टम्स की भी बात करूंगी, केसेस जो है एसिम्टोमेटिक से साइटोकाइन स्टॉर्म तक जा रहे हैं। तो मैं वो साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है उसके बारे में आगे बात करूं। तो जो ये एसिम्टोमेटिक केसेस हैं वो आपको अफेक्ट ना करें तो आपको अपना कॉन्टैक्ट टाइम 15 मिनट से कम रखना है। और अब रिसेंटली WHO और CDC ने एक और बात कही, पहले तो यह था कि एक बार में 15 मिनट से कम रखो, क्यूमुलेटिव टाइम भी कोविड पॉजिटिव के साथ अगर 15 मिनट से ज्यादा है तो चांसेस है कि आपको हो जाएगा। मतलब आपने 5 मिनट के लिए बात करी, फिर थोड़ी देर बाद चले गए, फिर दोबारा 5 मिनट के लिए बात करी, फिर थोड़ी देर बाद गए, फिर 5 मिनट के लिए बात करी, तो टोटल 15 मिनट भी चांसेस बढ़ा देते हैं आपको कोविड पॉजिटिव करने में। ठीक है, तो हमने दो चीजों का ध्यान रखना है, 2 गज दूरी है बहुत जरूरी, और अपना कॉन्टैक्ट टाइम 15 मिनट से कम रखना है पेशेंट के साथ। अब दूसरे ट्रांसमिशन के मोड पे आते हैं, विच इज सरफेस टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। सरफेस टू ह्यूमन ट्रांसमिशन क्या होता है, आपकी जो वायरस है, जब मैं बोल रही हूँ, इस टाइम तो मैंने कोई मास्क नहीं लगा रखा, इसलिए नहीं लगा रखा क्योंकि मेरे आसपास कोई नहीं, लेकिन अगर मैं कोविड पॉजिटिव होंगी तो क्या होगा, मेरे मुंह से जो सलाइवा निकल रहा है, क्योंकि किसमें थ्राइव कर रहा है ये वायरस, वो मेरे इंटरनल सिक्रीशंस में ही सर्वाइव कर रहा है, तो वो निकल के सर्फेसिस पे जाएगा, और ड्रॉपलेट्स बड़े होते हैं इसलिए मेरे आसपास की सरफेस पे ही ज्यादा जाएगा। और अगर मान लो कोई और आके उस सरफेस को छू देता है और वही हाथों से अपने नाक, कान, मुंह, आंख किसी को हाथ लगा लेता है तो वायरस उसके अंदर चला जाए। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर प्रिकॉशन क्या रखनी है, अपनी सर्फेसिस को रेगुलरली डिसइंफेक्ट करना है। अब डिसइंफेक्ट किससे करना है, डिसइंफेक्ट किससे कर सकते हैं, वायरस किसको मार रहा है, किससे मर रहा है वायरस, एक मैंने बताया साबुन से। अब हर चीज को तो हम साबुन से नहीं धो सकते ना, मान लो मैंने हैंडल को हाथ लगाया तो मैं क्या बार बार उसको साबुन से साफ करती रहूंगी, या लकड़ी को हाथ लगाया, लकड़ी को मैं कितनी बार जो है साबुन से साफ कर लूंगी। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके ऊपर साबुन नहीं लगाया जा सकता, वो खराब हो जाती है। तो जिन चीजों को साबुन से साफ कर सकते हैं उनको साबुन से साफ करिए, नहीं तो अल्कोहल जो मैंने बताया 60%, anything which contains any sanitizer, any disinfectant which contains more than 60% of alcohol, that can be used to clean the surfaces। और क्योंकि वो surfaces पे हमारा हाथ लग रहा है इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथ भी frequently साबुन और पानी से धोने चाहिए। एंड ये वीडियोस मैं बहुत सारे पहले बना चुकी हूँ, आई विल नॉट रिपीट दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन कि आपको हाथ किस तरह से धोना चाहिए। अगर आपको याद हो तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि 20 सेकंड के लिए हाथ धोना है। अब 20 सेकंड घड़ी तो देखेंगे नहीं कि 20 सेकंड हुए या नहीं हुए, तो उसका तरीका है काउंट करो 1001 से लेकर 1020 तक, वो पूरे गिन के 20 सेकंड बनते हैं। तो 20 सेकंड के लिए हाथ धोइए, और हाथ धोने की भी टेक्निक है, ऐसे ऐसे किया हो गया काम, ऐसे करने से हाथ नहीं धुलते। हाथ धोने के लिए आपको सुमन के शब्द का याद रखना चाहिए। इसकी भी जानकारी के लिए आप वापस मेरे वीडियोस पे जा सकते हैं। और मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है जो स्कूल का, जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलनेस, प्लीज उसको ज्वाइन करिए। और उसमें मैंने ये सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं कि आपको हैंड वॉश किस तरीके से करना है, आपको कौन सा मास्क पहनना है, आपको सैनिटाइजर घर में कैसे बना सकते हैं, कौन से वाला सैनिटाइजर यूज करना है। तो ये सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। आई विल नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टॉकिंग अबाउट दोज things here. You can watch the videos and get in-depth information on all those things. So this was about the transmission part. ट्रांसमिशन मैंने बताया, एक तो हमने सोप से साफ करके कर सकते हैं, एक डिसइंफेक्टेंट जिसके अंदर 60% से ज्यादा अल्कोहल, या फिर एक केमिकल आता है जिसको कहते हैं हम सोडियम हाइपोक्लोराइट।
अगर आप अपने घर में यूज करने वाला बाथरूम क्लीनर देखेंगे, लाइजॉल, आई एम श्योर हर एक के घर में होता है, अगर आप लाइजॉल पढ़ेंगे तो उसके ऊपर लिखा होता है इट कंटेन सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो कितनी परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड हमें चाहिए जो उस वायरस को मार दे? दैट इज ओनली 1% ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। और नॉर्मली जितने भी डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं इन सब के अंदर 10% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन होती है। तो उसको हमने क्या करना है? डाइल्यूट करना है। एक पार्ट उस सोल्यूशन का लेना और उसमें 10 पार्ट पानी का मिला देना है। तो जब हम उसमें 10 पार्ट पानी का मिला देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन बन जाएगी, जिससे हम डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। घर में बहुत सारी लेडीज हैं जो झाड़ू पोछा कर रही होंगी, तो मैं एडवाइस करूंगी अपने पोछे में सोडियम हाइपोक्लोराइड जरूर मिलाइए। दैट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। पोछे वाले पानी के अंदर थोड़ा सा लाइजॉल जो डिसइंफेक्टेंट होता है वो आप मिला के पोछा करिए, तो आपकी जो नीचे का फ्लोर है वो एटलीस्ट डिसइंफेक्ट हो जाएगा। और जब आप डस्टिंग करते हैं तो यू कैन पुट अ लिटिल अल्कोहल, 60% अल्कोहल उसमें डाल के उससे स्प्रे करके अगर आप सर्फेसेस क्लीन करेंगे तो भी चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन विल गेट रिड्यूस्ड। तो ये था हमारा ट्रांसमिशन का प्रोसीजर या प्रोसेस, किस तरीके से हम हमारे तक ट्रांसमिट होता है और हम बचाव कैसे कर सकते हैं इस ट्रांसमिशन को रोक के। एक और तरीका है जिससे हम बचाव कर सकते हैं, इस ट्रांसमिशन को कैसे रोक सकते हैं, वो ये है कि किसी भी सरफेस पे अगर उसको होस्ट नहीं मिलता वायरस को, तो वो 72 घंटों में वो उसकी वायबिलिटी वो खत्म हो जाती है, वो डेड हो जाता है वायरस। तो किसी भी चीज को यूज करने से पहले अगर आप 3 दिन के लिए रख देते हैं उसको, तो उसके ऊपर जो भी वायरस है वो खत्म हो जाएंगे। अगर आपको इमीडिएटली यूज करना है तो आपको डिसइंफेक्ट करना है, आप उसको अल्कोहल से डिसइंफेक्ट करें या फिर जो है किसी और चीज से डिसइंफेक्ट करें, लेकिन आपको डिसइंफेक्ट इसी तरीके से करना पड़ेगा। या फिर उसको 3 दिन के लिए आप रख दें तो भी जो है, और उसको 3 दिन रखने के बाद आप छुएंगे तो वो ऑलरेडी उसमें वो वायरस फ्री होगा। सो दैट इज वन वे ऑफ कीपिंग योरसेल्फ सेफ, अनदर वे ऑफ कीपिंग योरसेल्फ सेफ। पर देखिए, पैरानॉइड नहीं होना हमने इसके बारे में, वी हैव टू बी कॉशियस, पर पैरानॉइड नहीं होना। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक औरत जो है धनिया को साबुन से धो रही थी, जैसे कपड़े धोते हैं ऐसे ही धनिया को धो रही। तो दैट इज नथिंग बट बीइंग पैरानॉइड। वी डोंट हैव टू बी पैरानॉइड, वी हैव टू बी कॉशियस, वी हैव टू बी अलर्ट, बट डोंट बिकम दैट पैरानॉइड कि आप हर चीज को साबुन से रगड़ रगड़ के धो रहे हैं जिसको नहीं भी धोना चाहिए। और स्पेशली सब्जियों को साबुन से प्लीज मत धोइएगा। जो सब्जियों की सतह होती है वो बहुत बारीक होती है, उसके अंदर पोर्स होते हैं। तो जो भी आपका साबुन, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, वो दैट इज नॉट मेंट टू बी एडिबल। वो आप खाने के लिए नहीं होता, वो आपकी सब्जियों से उसके अंदर सीप कर जाएगा, उसकी लेयर से, उसकी बाहर की आउटर लेयर से वो आपकी सब्जी के अंदर सीप कर जाएगा, एंड इट विल कॉज गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इट विल कॉज एसिडिटी, इट विल कॉज इसोफेजाइटिस, आपको बर्निंग होनी शुरू हो जाएगी छाती के अंदर, और इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स आल्सो। तो प्लीज साबुन से सब्जियों को नहीं धोइए। अब आते हैं सिम्टम्स के ऊपर। कोरोना वायरस के बारे में जानकारी हो गई, उसके ट्रांसमिशन के बारे में जानकारी हो गई। अब लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर इट्स सिम्टम्स। मैंने पहले भी कहा था, एसिम्प्टोमेटिक केसेस से लेकर साइटोकाइन स्टॉर्म तक के केसेस आ रहे हैं। अब लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है? वायरस को एक चोर समझ लीजिए। जब चोर आपके घर में आते हैं तो आप क्या करते हो? पहले अपनी जी जान से उसके साथ लड़ने की कोशिश करते हो। जो भी आपके औजार है आपके घर में, चकला है, बेलन है, बर्तन है, सब उसको मारने की कोशिश करते हो। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर एक इम्यूनिटी होती है जिसको हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो है इस वायरस से लड़ने की कोशिश करती है, उसको दबोचने की कोशिश करती है। और अगर दबोच लेती है तो क्या होगा? चोरी तो हुई नहीं, कोई सिम्टम तो आया ही नहीं, वो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो जाएगा। लेकिन चोर तो उसके घर में ही है, दबोच तो लिया लेकिन चोर तो अंदर ही है। तो वो केसेस क्या होंगे? वो एसिम्प्टोमेटिक केसेस होंगे। लेकिन कभी कभी चोर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, एक चोर नहीं होता, बहुत सारे चोर होते हैं। वो हमारे को ही आके दबोच लेते हैं, या हमारे ही सेल्स के ऊपर पूरा कब्जा कर लेते हैं, या हमारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर सबके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले जब हम अकेले नहीं लड़ पा रहे होते, हम फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी हेल्प ले लो, ठीक है। तो जब हम उनकी हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, वो होता है
जो ये प्लाज्मा थेरेपी शुरू हुई थी कि एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट का प्लाज्मा लिया और आपके अंदर डाल दिया, तो आप उस डिजीज से थोड़ा सा बच पाओगे। तो हमने क्या किया, हमने हेल्प मांगी उन लोगों से जो ऑलरेडी उस चोर से पहले लड़ चुके हैं। मान लो वो चोर किसी के घर में चोरी कर चुका है, तो आप उनको बोलोगे आप आ जाओ प्लीज से लड़ो, इसका ध्यान करो, या अपनी सिक्योरिटी को भेज दो यहाँ पर। तो वो जो एंटीबॉडीज हम उस पेशेंट से ले रहे हैं, वो एक तरह से वो सिक्योरिटी है जो ऑलरेडी चोर से लड़ चुकी है। उसको मालूम है इसके वीक पॉइंट क्या है, इसमें हाथ पे मारूंगा या इसकी टांगे कमजोर है, मैं इसकी टांग पे मारूंगा तो ये चोर गिर जाए। उनको मालूम है कि किस तरीके से लड़ना है। पर कभी कभी ऐसा होता है वो सिक्योरिटी भी काम नहीं कर पाती, तो हमें क्या करना पड़ता है, पुलिस को फोन लगाना पड़ता है। और पुलिस को फोन लगाते हैं तो क्या होता है, पुलिस आ जाती है। लेकिन जब पुलिस आती है अपने पूरे गैंग के साथ आती है, बहुत सारे लोगों के साथ आती है, और क्योंकि सब लोग अंदर बंदी बने हैं, वो तो पहचानती नहीं है पुलिस। तो जो भी आ रहा है, जो आमी आ रही है, वो नहीं पहचानती कि अंदर चोर कौन है और घर के मालिक कौन है। वो डिशम डिशम करके सबको एक ही गोली से उड़ा देती है। तो दिस इज कॉल्ड एज साइटोकाइन स्टॉर्म। हमारा शरीर भी लड़ने की कोशिश कर रहा है। लड़ाई में वो इतने सारे सेल्स प्रोड्यूस कर देता है, IL-6 प्रोड्यूस कर देता है, NK सेल्स प्रोड्यूस कर देता है, जो एक साइटोकाइन स्टॉर्म ले आते हैं। अगर लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं तो स्टॉर्म नहीं लेके आते, वो हमारे शरीर के सेल्स को भी उड़ाना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं उड़ाने के लिए, थोड़ी सी अग्नि को सुलगा देते हैं। आपने देखा होगा जहां पर आग लगती है तो क्या होता है, बाद में वो गर्म रहती है, जगह रहती है ना। मान लो मैंने आग जलाई या अंगीठी जलाई या कोयले जलाए, तो ये साइटोकाइन स्टॉर्म क्या है, या ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं, जो साइटोकाइन आया वायरस के कारण, उसने ये आग जला दी। और आग जब खत्म हो गई, जब वो वायरस डेड हो गया, जब उसमें जो आग लगी हुई थी खत्म हो गई, तो नीचे जो राख रह जाती है वो सुलगती रहती है, वो भी गर्म होती है। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन कोविड। पेशेंट के 14 दिन पूरे हो गए, लेकिन उसका टेम्परेचर नीचे नहीं आ रहा, टेम्परेचर उसका 99 ही बना हुआ है। वो आग सुलगे ही जा रही है, सुलगे ही जा रही है, वो धीरे धीरे वो गर्म रह ही रही है। और स्पेशली तब ज्यादा गर्म हो जाता है जब वो एक्सर्शन करता है। तो एक्सर्शनल फीवर इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कोविड-19। और ये कोई भी हिस्सा स्पेयर नहीं कर रहा बॉडी का। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दोज प्लेसेस जहां पर ACE2 रिसेप्टर्स है। मैंने बताया ना, ये कोरोना वायरस की जो स्पाइक्स हैं, जो ऐसे ऐसे इस तरीके से निकले हुए हैं क्राउन की तरह, वो एक लॉक एंड की तरह बॉडी के सेल्स में जाके जम जाते हैं, एक बंध जाते हैं बॉडी के सेल्स के साथ, और अंदर रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं सेल के अंदर। मतलब उनकी बहुत सारी फोटोकॉपी बननी शुरू हो जाती है सेल के अंदर, और वो सारा सेल उस वायरस से ही भर जाता है। तो ये जो लॉक एंड की मैकेनिज्म है, यही जो है डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारे बॉडी के सेल्स को। अब आते हैं, समझते हैं कि और सिम्टम्स क्या आएंगे। जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं, जहां पर ये कोरोना वायरस जाके बाइंड कर रहा है, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी आंखों में प्रेजेंट होते हैं, हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, हमारे नोज में प्रेजेंट होते हैं, हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, हमारी किडनीज में प्रेजेंट होते हैं, हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सिम्टम्स हैं, इन्हीं सभी ऑर्गन्स में आएंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले सिर से। तो कुछ पेशेंट ऐसा भी बताते हैं कि सिर्फ सिर में दर्द हो रहा है। टुडे ओनली आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय पेरेंट्स who said that she is COVID positive, and she said the only thing was कि उसको सिर्फ सिर में दर्द हो रहा था। और जहां वो गई थी थोड़े दिन पहले, किसी पार्टी में गई थी, अब पार्टी की बात पे भी आऊंगी, इट वाज अ रिटायरमेंट फंक्शन ऑफ समबडी वेयर शी वेंट, और जहां वो गई थी वहां पर कोई कोविड पॉजिटिव निकला, कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ गया था, और वो सबके सब वो इस टाइम पे कोविड पॉजिटिव है। सिर में दर्द हो रहा था, कोल्ड हो रहा था, शी गॉट हरसेल्फ टेस्टेड एंड शी टर्न्ड आउट टू बी कोविड पॉजिटिव। तो सिम्टम्स क्या हुए, सिर में दर्द होगा, फीवर होगा, फीवर लो ग्रेड होगा, 100 से नीचे होगा, सुलगेगी आग। और अगर 100 से ऊपर जा रहा है फीवर, अगर 101 फीवर है, तो समझ लीजिए वायरस यहां से आपकी छाती में पहुंच चुका है, निमोनिया हो चुका है, इट इज टाइम टू गेट इनटू रेड अलर्ट। तो ध्यान रखिए, अगर कोविड होता है, अगर 100 से नीचे टेम्परेचर है, तो फिर भी चांसेस हैं कि आप सेफ हैं। वायरस थोड़ा सा ही सुलगा है, थोड़ी सी ही आग लगाई है उसने, ज्यादा नहीं लगाई। लेकिन अगर 101 हो गया टेम्परेचर, इसका मतलब उसने आग थोड़ी ज्यादा लगा दी, और वो आग आपकी लंग्स तक पहुंच चुकी है और आपको निमोनिया हो चुका है। तो वो दैट इज अ मार्कर कि आपको निमोनिया हो गया है। तो फीवर इज अनदर सिम्टम। गले में
सबसे पहले सिम्टम्स आते हैं, नाक, गला, ये वाला पार्ट जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो गले में सिम्टम्स क्या आएंगे? गले में दर्द होगा और ऐसा लगेगा यहाँ को चटका हुआ है, कुछ नीचे नहीं जा रहा, कुछ लंप है, यहाँ पर लंप सा है जो नीचे उतर ही नहीं रहा, जितना मर्जी पानी पी लो, जो मर्जी खा लो, वो नीचे जा ही नहीं रहा। तो ये भी एक सिम्टम है कोविड-19 डिजीज का। उसके बाद लंग्स में तो मैंने आपको बता ही दिया, लंग्स में क्या होता है? निमोनिया करता है। अब निमोनिया क्यों हो रहा है? निमोनिया इसलिए नहीं हो रहा कि बलगम जम रही है, निमोनिया इसलिए हो रहा है कि जो उसकी सर्कुलेशन है, जो लंग्स की सर्कुलेशन है, उसके अंदर क्लॉट्स बन रहे हैं, थ्रोम्बो एम्बोलाई बन रहे हैं, माइक्रो एम्बोलाई बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये वायरस क्या कर रहा है? हमारे खून में थक्के बना। आपने अक्सर हार्ट पेशेंट्स को एस्प्रिन लेते हुए सुना होगा या इकोस्प्रिन लेते हुए सुना होगा। अगर आपके घर में हार्ट पेशेंट्स है तो आई एम श्योर सब लोग जो है इकोस्प्रिन जरूर लेते होंगे। वो क्या है? ब्लड थिनर है। क्योंकि उनको हार्ट पेशेंट क्यों है? क्योंकि वो जो क्लॉट था उसने जो हार्ट की सर्कुलेशन है, जो सर्कुलेशन हार्ट को खाना दे रही है, न्यूट्रिशन दे रही है, वो कहीं बंद हो गई। जब वो सर्कुलेशन बंद होती है तो क्या होगा? वो पार्ट हार्ट का डेड हो जाएगा, और जब हार्ट का पार्ट डेड होगा तो क्या होगा? हार्ट का फंक्शन खत्म हो जाएगा, और अगर हार्ट का फंक्शन खत्म हुआ तो इंसान भी कहाँ रहेगा? सिमिलर इज द केस विद द लंग्स। वो लंग की सर्कुलेशन में छोटे छोटे से क्लॉट्स चले जाते हैं, और जिन क्लॉट्स के जाने की वजह से जो एंड आर्टरीज हैं लंग्स की, वो कोलैप्स हो जाती है। और जब वो एंड आर्टरीज कोलैप्स होती है, जो लास्ट में एल्वेलाई होते हैं, हमारा लंग्स क्या है? एक ट्री की तरह है। अगर मैं एक ट्री की तरह उसको सोचूं तो जो सबसे ऊपर वाले पत्ते हैं वो एल्वेला है, तो उनके तक सर्कुलेशन नहीं पहुंची, या समझ लो पानी नहीं पहुंचा, तो क्या होगा? वो पत्ते झड़ जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे, क्योंकि उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। इसी तरह हमारे लंग्स के एल्वेलाई भी कोलैप्स हो जाएंगे, और जब वो लंग्स के एल्वेलाई कोलैप्स होते हैं तब क्या सिम्टम आता है? ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में मुश्किल। पर ये सांस लेने में मुश्किल ना बहुत जल्दी से नहीं समझ आती है, और जब आती है तो टाइम बहुत कम होता है। टाइम बहुत कम होता है इन द सेंस कि उस पेशेंट को इमीडिएटली ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और अगर ऑक्सीजन ना मिले तो डेथ होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हमें रेड अलर्ट्स जाननी चाहिए। रेड अलर्ट्स जाननी चाहिए का मतलब क्या है? कि हमें जानना चाहिए कि हम कब ब्रेथलेस हो रहे हैं, कब ऐसा हो रहा है कि हमारे हमारे लंग्स में इफेक्ट हो रहा है। तो उसको जानने के लिए एक 6 मिनट का वॉकिंग टेस्ट है, इसको 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट कहते हैं। वो 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट क्या है? वो 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट ये है कि आप अपने हाथ में, उंगली में एक पल्स ऑक्सीमीटर, एक अपैरेटस होता है, एक गैजेट होता है, एक डिवाइस होता है, जिसके बारे में आई थिंक आप सबको पता होगा क्या होता है। उसको अपनी उंगली में लगाइए, और अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार गूगल सर्च भी कर सकते हैं, और यू कैन सी वन ऑफ माय वीडियोस आल्सो। उसको अपनी उंगली में लगाइए और अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन का मतलब क्या है? आपके रक्त में, आपकी आर्टरीज के अंदर कितना ऑक्सीजन है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन सैचुरेशन। जब अपनी पल्स ऑक्सीमीटर से आप अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन टेस्ट करते हैं, तो अगर वो 92 से ऊपर है, then there is nothing to worry about, that means you are okay। लेकिन किसी भी समय वो 92 के नीचे हो गई तो इसका मतलब आपको हॉस्पिटल के अंदर जाने की जरूरत पड़ सकती है। तब उसको कैसे टेस्ट करोगे कि ये नीचे होने वाली है या नहीं होने वाली? उसके लिए हम 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट करते हैं। आप अपनी उंगली में ऑक्सीमीटर लगाइए, रीडिंग चेक करिए, और 6 मिनट के लिए घर के अंदर घूमिए। 6 मिनट के लिए घर के अंदर जब आप घूमेंगे तो आपकी अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 4 से ज्यादा नीचे गिरती है, अक्सर लोगों की ऑक्सीजन सैचुरेशन जो नॉर्मल होती है कितनी होती है? 98, 99, 96, 95 इतनी होती है। अगर मान लो आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 98 आ रही है और या 99 आ रही है, 99 से वो 94 पे पहुंच जाती है, तो आप तो सोचेंगे कि मैं तो नॉर्मल हूँ, क्योंकि हमारे को तो डॉक्टर अंशु ने बोला था 92 नॉर्मल होता है। लेकिन मैं एक राइडर और लगा रही हूँ ऊपर से कि अगर आपकी 99 से 94 पे आ जाती है, इसका मतलब 5 गिर गई। 5 गिर गई मतलब आपको रिस्क है, लेकिन आपके पास समय है अपने आप को बचाने के लिए। और समय क्या है? कि इन पेशेंट्स को क्या बोलते हैं? आपको बोलने में कोई, सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही होगी, ऐसे पेशेंट्स को हैप्पी हाइपॉक्सिक बोलते हैं। खुश है, हाइपॉक्सिक है। हाइपॉक्सिक मतलब उनको अंदर दिक्कत हो रही है, उनकी लंग्स काम नहीं कर रही है ठीक से, लेकिन वो खुश है, उनके आगे सिम्टम्स नहीं नजर आ रहे।
आपने अगर शुरू में ध्यान दिया होगा, वीडियोस देखे होंगे चाइना के, जिस टाइम पे कोविड आया था, लोग सड़क पे चलते चलते गिर रहे थे। वो क्या था? इट वाज नथिंग बट दिस ओनली, दे आर वॉकिंग डेड पेशेंट्स। चलते हुए आप कई पेशेंट्स का आपने शुरू में सुना होगा, गए तो थे हॉस्पिटल में, बिल्कुल चलते चलते पता नहीं क्या हुआ, घर से तो ठीक ठाक गए थे, वहां जाते ही कहते हैं ये तो जी डेथ हो गई। वो कैसे हुई? क्योंकि वो हैप्पी हाइपोक्सिक थे। तो मैंने आपको एक तरीका समझा दिया अपने आप को जांच करने का कि कहीं आप हैप्पी हाइपोक्सिक तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमने ट्रांसमिशन की बात कर ली और हमने बात कर ली सिम्टम्स की। अब हम आते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए। अब प्रिकॉशंस के लिए ये एक्चुअली जितना भी मैं ये सेमिनार कर रही हूँ, दिस इज ऑन द डायरेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, जन आंदोलन करके उन्होंने एक प्रोग्राम या एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें उन्होंने शुरू किया है कि ये इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सके। वो अपनी तरफ से एड्स देके, जैसे अभी अमिताभ बच्चन जी फोन पे बोल रहे हैं और कुछ एड्स भी टीवी पे आ रही हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी जा रही है, पर वो चाहते हैं कि कोई भी मींस ना छूटे जिसके थ्रू हम ये इंफॉर्मेशन लोगों को तक ना पहुंचा पाए। तो पेरेंट्स भी एक बहुत बड़ा जरिया है। ठीक है, पेरेंट्स, अगर मैं स्कूल के सारे पेरेंट्स को ये बात बता देती हूँ तो आप सोचिए 2,500 फैमिलीज को तो मैंने ऐसे ही एजुकेट कर दिया। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोग्राम का मकसद एक्चुअली यही था। आप सब लोग सोच रहे होंगे ये तो हमें सब मालूम ही है, ये तो मालूम है, ये कौन सी नई बात बताई गई है। बट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, आई एम श्योर सब लोग सुबह जो है भगवान को आजकल जरूर याद करते होंगे। वैसे कभी याद करते हो ना याद करते हो, लेकिन कोरोना ने सबको भगवान याद दिला दिया है। सुबह सब लोग प्रेयर करते होंगे और प्रेयर करते हुए क्या कहते होंगे? भगवान सबका ध्यान रखना, भगवान सबको सुरक्षित रखना, और रोज यही बात रिपीट करते हो। और रोज रिपीट करने का बात का क्या फायदा है? भगवान जी को तो एक बार बता दिया आपने, आप रोज क्यों रिपीट कर रहे हो? रिपीट इसलिए कर रहे हो कि आप री इन्फोर्स करना चाहते हो, आप अपनी बात को दोबारा से दोहरा के पक्का करना चाहते हो। द सेम थिंग आई एम डूइंग विद यू, यू माइट बी नोइंग ऑल दीज थिंग्स, बट मैं सिर्फ पक्का करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बात आपको याद रहे। ठीक है, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस इवेंट। नाउ देखिए, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने वैक्सीन की बात नहीं करी है। वैक्सीन का कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। वैक्सीन कब आएगी, क्या करेगी, किस तरह से एक्ट करेगी, हमें नहीं मालूम है। आप ये समझ लीजिए, अगर हम इस पैंडेमिक को वॉर बोल रहे हैं और हम दूसरी साइड पे हैं वॉर के, जिनके ऊपर अटैक हो रहा है, तो जब एक आर्मी हमारी तरफ आ रही होती है, हमारे ऊपर जो है आक्रमण करने के लिए आती है और हमें अपने आप को बचाना है, तो हम क्या करेंगे? दीवार बनाने की कोशिश शुरू कर देंगे। अब दीवार बनने में टाइम लगता है, दीवार को एक दिन में तो बन नहीं जाती है। दीवार बनने के लिए ये भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि जो ईंट उसमें लगा रहे हैं हम उस दीवार बनाने में, वो ईंट ताकतवर है या नहीं है, उस आर्मी के वॉर, उसके आक्रमण को झेल सकेगी या नहीं झेल सकेगी। तो यही सभी प्रोसेस अभी वैक्सीन बनने में भी चल रहा है। ईंटों की जांच हो रही है, सीमेंट की जांच हो रही है, और ये पक्की एक छोटी सी वॉल बना के उसको भी तोड़ा जा रहा है। दीज आर कॉल्ड एज ट्रायल्स, फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल। और एक लेयर उसका सीमेंट का करना है या 2 लेयर करने हैं तो पक्की होएगी। अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि 1 डोज वैक्सीन की ठीक रहेगी या 2 डोज ठीक रहेगी। तो ये सब ट्रायल्स चल रहे हैं। तो जब तक वो दीवार हमारी खड़ी होगी, जब तक वो वैक्सीन आएगी, उससे पहले हमें तो कुछ करना ही। तो ये प्रिकॉशंस जो हमने लेनी है, उसको हम समझते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या कहा है, उनके हिसाब से समझते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ स्क्रीन शेयर करूंगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, जो उन्होंने बताई है, एंड लेट अस सी वो क्या कह रहे हैं। प्लीज स्टे विद मी। Meanwhile, I can tell you of some more things, which is, Hanji. So I have started sharing my screen, and I would like to tell you certain things as per this screen sharing. सबसे पहला, सी बताना और प्रॉमिस लेने में बहुत फर्क होता है। पता सबको है, लेकिन किसी ने आपसे प्रॉमिस नहीं लिया होगा। आज मैं आपसे प्रॉमिस लूंगी, 15 प्रॉमिसेस लूंगी, जो आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में मुझे के तौर पे मुझे देने हैं।
तो पहला जो प्रॉमिस है वो ये है कि आप किसी से भी मिलेंगे तो उससे जब आप ग्रीट करेंगे तो विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट करेंगे। अब दिवाली आ रही है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो आपने क्या करते हैं, हम अक्सर क्या करते हैं, गले मिलते हैं दिवाली पे, या फिर हाथ मिलाते हैं, या फिर आशीर्वाद देते हैं, बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं। तो आपने कॉन्टैक्टलेस दिवाली सेलिब्रेट करनी है। कभी भी किसी से मिलना है तो आपने फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं करना, गले नहीं लगना, किसी को हाथ नहीं मिलाना, किसी को थपथपाना नहीं है, सिर्फ दूर से नमस्ते कर लेनी है। नमस्ते हमारा वर्ल्ड ओवर पॉपुलर हो गया है इसी वजह से, ठीक है। तो एक पहला काम हमने ये करना है कि कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं रखना किसी के साथ भी हमने। आई एम सो सॉरी, आई थिंक आई हैव शेयर्ड अ रॉन्ग स्क्रीन नाउ, लेट मी गो बैक टू माय स्क्रीन। So this was about having no physical contact, and then you have to greet everybody। जैसे मैंने कहा, नमस्ते करिए, थम्स अप करिए, हाय बोलिए, लेकिन आई थिंक मैं सजेस्ट करूंगी हमारा जो नमस्कार है सबसे अच्छा तरीका है ग्रीट करने का, उसको फॉलो करिए, ठीक है। और सेकंड जो है, मैंने पहले भी कहा, 2 गज दूरी है बहुत जरूरी, 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करिए और अपना कॉन्टैक्ट टाइम 15 मिनट से कम रखिए। I hope I am going a little fast, but I hope it is okay with all of you। यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 गज दूरी। और जैसा मैंने पहले कहा था कि वेजिटेबल लेने के लिए या हॉस्पिटल जाएं या फार्मेसी में जाएं, सब जगह आपको 6 गज दूरी अपनी मेंटेन करनी है। और जब भी आप काम पे भी जा रहे हैं, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ग्रोसरी शॉपिंग के अंदर जा रहे हैं के लिए जा रहे हैं तभी आपको 6 गज दूरी मेंटेन करनी है। काम पे भी जा रहे हैं तो आप 6 फुट दूर ही बैठिए अपने बाकी सहकर्मियों से। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने पहले बात नहीं करी, वो ये है कि आप कभी भी बाहर जाएं बिना मास्क के नहीं जाएं। कपड़े वाला मास्क पहनना चाहते हैं तो देयर इज नो हार्म, सर्जिकल मास्क पहनना चाहते हैं तो वो सिर्फ 1 टाइम यूज होता है। लेकिन आप कपड़े से घर में बना हुआ मास्क, आजकल तो बहुत सारे डिजाइनर मास्क भी अवेलेबल है, बिना मास्क पहने कृपया अपने घर से बाहर नहीं जाएं, ठीक है। यू शुड ऑलवेज कवर योर माउथ। और किस तरह का मास्क सबसे अच्छा है, इसको जानने के लिए आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। मेरा वीडियो है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो मैंने आपको पहले भी बताया, जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलनेस। आप यूट्यूब पे जाएंगे और हेल्थ एंड वेलनेस डॉक्टर अंशु अस्त्री लिखेंगे तो आप यूट्यूब के चैनल पे पहुंच जाएंगे, जहां पर मैंने एक बड़ा एलैबोरेट वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि आपको कौन से तरह का मास्क सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो जो भी आप मास्क यूज करना चाहें, उस वीडियो को देखने के बाद आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और क्यों जरूरी है ये भी बताएंगे आप, ये मैंने नहीं समझाया। देखिए, ये जब आपने मास्क पहना होगा तो कुछ तो प्रोटेक्शन देगा। N95 जो मास्क है वो बिल्कुल भी वायरस को आपके अंदर एंटर नहीं करने देता, लेकिन जो क्लॉथ वाले मास्क है वो एटलीस्ट अगर आप एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव है तो आपका वायरस बाहर नहीं जाएगा, आप किसी को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। और कोविड ने इतना तो हमें समझा ही दिया है कि भैया दूसरे का भला होगा तो मेरा भला होगा। अगर दूसरा सेफ है मैं तभी सेफ हूं, अगर दूसरा सेफ नहीं है तो मैं भी सेफ नहीं। अगर किसी और को कोविड है तो मुझे पक्का कोविड हो जाएगा, तो दूसरे की सेफ्टी में ही मेरी अपनी सेफ्टी है। तो ये तो हम सब लोगों को सिखा दिया कोविड ने, इसलिए बिना मास्क के कृपया बाहर नहीं जाइए। जैसा मैंने समझाया, ये लिमिट करता है इन्फेक्शन को और पूरी कम्युनिटी इस हिसाब से प्रोटेक्ट हो जाती है। अब आपको मास्क कैसे पहनना चाहिए, नेजल क्लिप आपका ऊपर होना चाहिए, पूरा माउथ और नोज आपका कवर होना चाहिए, और उसकी जो प्लीट्स होती है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए, और स्ट्रिंग से आपको बांधना चाहिए। पहले नीचे वाली स्ट्रिंग बांधे, फिर ऊपर वाली बांधे, और कभी भी मास्क को हाथ ना लगाएं। अगर आपने मास्क को हाथ लगा दिया और उन्हीं हाथों से अपनी आंखों को छू दिया तो वायरस तो आपके अंदर चला जाएगा, क्योंकि मास्क की बाहर वाली लेयर पर ही तो सारे वायरसेस हैं। तो अपने हाथ, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में, ये पक्का है। योर सेफ्टी इज इन योर हैंड्स। हाथ अगर साफ होंगे तो आप सेफ हैं। अगर हाथों के ऊपर ही वायरस है और आंख, मुंह, नाक को हाथ लगा दिया तो आपको जो है पक्का कोविड-19 हो ही जाएगा। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेनी है मास्क पहनते वक्त। मास्क पहनने से पहले भी हाथ धोना है, मास्क उतारने के बाद भी हाथ धोना है।
और ये मास्क हमेशा ही पहनना है, एक्सेप्ट फॉर द टाइम व्हेन यू आर सिटिंग अलोन, द वे आई एम सिटिंग अलोन हियर, ठीक है। और ये मीटिंग में हो, जहां 4 लोग बैठे हो या कहीं से मिल रहे हो तब जो है, या पब्लिक प्लेस में जा रहे हो तो भी आपको मास्क जरूर पहनना है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप घर में बना सकते हैं मास्क। आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको फेस मास्क बनाने का तरीका भी मिल जाएगा। और जैसा मैंने पहले बताया, अपने हाथों को धोइए साबुन से, पानी से या अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से। अपने नाक, मुंह और हाथ को, अपने आंख, नाक और मुंह को हाथ नहीं लगाइए। आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। अननेसेसरली आपने अपने नाक, मुंह और आंखों को हाथ नहीं लगाना। और क्यों नहीं लगाना ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी हाइजीन की। रेस्पिरेटरी हाइजीन में क्या है, अब इस चेंजिंग मौसम में खांसी जुकाम तो अक्सर सबको हो जाता है। अब खांसी जुकाम होता है तो हम क्या करते हैं, जोर से छींकाए, हमने अच्छी करके अपने हाथों में ही छींक लिया और फिर उन्हीं हाथों से हमने कहीं कोई काम कर रहे हैं वापस वही काम करने लग गए। तो क्या होगा, जो वायरस है हमारे हाथ से हमारे आसपास की सर्विसेज में चला जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने वो अवॉइड करना है। अवॉइड कैसे करेंगे हम अपने, जब भी छींक आएगी हम वी विल स्नीज इनटू द एल्बो, अपनी कोहनी में छींकेंगे। कोहनी को तो हम नहीं हाथ लगाते, ना ही कहीं जाके हमारी कोहनी किसी के साथ टकराती है, तो या तो उसमें छींकेंगे या फिर अगर हमारे पास कोई हैंकरचीफ है, और हैंकरचीफ से ज्यादा बेटर है अगर कोई टिश्यूज है, टिश्यू के अंदर छींकिए और टिश्यू को फिर डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। तो ये रेस्पिरेटरी, दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, दैट यू हैव टू कवर योर नोज एंड माउथ with either the handkerchief or with tissue paper, or you have to sneeze or cough into your bent elbow, and immediately sneeze cough करने के बाद अपने हाथ धोना ना भूलिए। अपने हाथों को भी रेगुलरली वॉश करिए। और किस तरीके से वॉश करना है मैं दोबारा बता रही हूँ, जैसे मैंने बताया सुमन के फॉलो करना है, स्टेप्स हैं हैंड वॉशिंग के, जो मेरे आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको किस तरीके से अपनी सरफेसेस को क्लीन करना है और डिसइंफेक्ट करना है। उसके लिए आप सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज कर सकते हैं या सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं जिसमें 60% से ज्यादा अल्कोहल हो। इसके अलावा हमें एनवायरमेंटल हाइजीन भी मेंटेन करनी है, अपने आसपास भी सफाई रखनी है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई नहीं रखेंगे तो वही हमारे हाथ वहां जाएंगे, वहां लगेंगे और हम इन्फेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी ओपन में स्पिट नहीं करना है। और ओपन में स्पिट करने से क्या है, हमारी स्पिट के अंदर से तो वायरस आ रहा है, और आपको ये शायद मालूम होना चाहिए, स्पिटिंग इन ओपन और पब्लिक स्पेसेस इज पनिशेबल बाय लॉ आल्सो, आपको जेल भी हो सकती है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। और स्पेशली टोबैको प्रोडक्ट्स को स्पिट नहीं करना। अक्सर हमने देखा दीवारें लाल पाई जाती हैं, सड़कें लाल पाई जाती हैं, क्योंकि लोग जो है ऐसी पब्लिक प्लेसेस में स्पिट कर देते हैं, बट रिमेंबर इट इज पनिशेबल बाय लॉ। इसके अलावा छुट्टियां हैं, काम ज्यादा है नहीं, बच्चे भी घर पे हैं, छुट्टी भी आ रही है, घर में बैठे बैठे बोर हो गए, तो लोग सोचते हैं एंजॉय कर ले, चलो जी घूमने ही चलते हैं। प्लीज, इट्स अ वेरी अर्नेस्ट रिक्वेस्ट। आई हैव सीन पीपल हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग, कोई वो जिम कॉर्बेट जा रहा है, कोई उत्तराखंड की प्रॉपर्टी में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि बोर हो रहे हैं घर में बैठ के। बोरियत बर्दाश्त करना ज्यादा अच्छा है rather than ट्रैवलिंग। सैर करने चले जाओ बिना किसी से मिले, घर में खेल लो, घर में कुछ और काम कर लो। प्लीज अननेसेसरली ट्रैवल मत करें, क्योंकि ट्रैवलिंग में सबसे ज्यादा चांसेस हैं आपको इन्फेक्ट होने के लिए। ट्रैवल करें तभी जब आपके लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है, और वो भी 6 फीट दूरी के साथ। और एक और बात, प्लीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है जो मैं आप सबसे करना चाहूंगी, कि जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं उनकी मदद करें, डिस्क्रिमिनेट नहीं करें उन्हें। अभी मैं कल एक बच्चे से बात कर रही थी, उस कोविड पॉजिटिव हेल्पलाइन पे मुझे एक टिकट मिली। जब मैं उस बच्चे से बात करती, मस्ट बी अराउंड 20-22 years old that child, and he was COVID positive. While I was talking to him, I heard some voices, बात करना बंद कर, बात करना बंद कर, फोन रख, फोन रख। मैंने कहा बेटे कौन बोल रहा है फोन रख, फोन रख? तो ही सेड कि मैम मेरे पापा बोल रहे हैं। मैंने कहा क्यों बोल रहे हैं पापा ऐसा कि फोन रख, बात नहीं कर?
कहते मैम मैंने कुछ अपने दोस्त को एक आधे को बता दिया तो हमारी गली में सबको पता लग गया, और जैसी गली में पता लगा सब लोगों ने हमारे से मुंह फेर लिया। मेरे पापा अगर कहीं बाहर जाते हैं, लोग उनसे भागना शुरू कर देते हैं हमसे दूर। तो प्लीज डिस्क्रिमिनेट नहीं करिए, प्रिकॉशंस के साथ उनकी मदद करने की कोशिश करिए इनफैक्ट। तो ये हमारे को सबको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 11वां प्रॉमिस जो मैं आपसे लेना चाहूंगी वो ये है कि आप अपना आरोग्य सेतु डाउनलोड करें। जब आप अपना आरोग्य सेतु डाउनलोड करेंगे तो आपको पता लगता रहेगा कि आपकी विसिनिटी में कितने लोग कोविड पॉजिटिव हैं, और तब आपको समझ आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है अपने आप को सेफ रखना। ठीक है, और हमारे डॉक्टर्स, पुलिसमैन, नर्सेस, सब लोगों का मोरल बूस्ट करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं पेरेंट्स को कॉल करती हूँ, 12th बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने कॉल किया है, काफी पेरेंट्स तो मुझे रेसिप्रोकेट करते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द टॉक आई ऑलवेज विश देम, आई से आई विश यू गुड हेल्थ, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, आप लोग सब इसी तरह स्वस्थ और सेफ रहें। तो आई सी अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, दे विश मी बैक, सो आई लाइक इट वेरी मच, यू नो, इट बूस्ट माई मोरल कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो लोग उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो आप भी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज जो भी आपको मिले तो उसे विश करना ना भूलें। अभी थोड़े दिन पहले मुझे किसी वजह से हल्दीराम जाना पड़ा, देयर वाज सम नीड दैट आई हैड टू गो, और मुझे कुछ खरीदना था वहां से बहुत जरूरी। तो वहां पर हल्दीराम के एम्प्लॉइज को मैंने देखा, उन्होंने सबने विश किया कि आप सेफ रहें। तो व्हेन आई विश देम बैक, दे सेड मैडम आप पहली हैं जिसने हमें वापस विश किया। नहीं तो लोग सुन लेते हैं, सोचते हैं हमारी ड्यूटी है विश करना, और किसी की ड्यूटी उनको वापस विश करना नहीं। तो प्लीज शो योर केयर, compassion, assurance, respect, and encourage people who are working in these difficult times. And discourage crowd. आप कहीं भी मार्केट में जाएं या कहीं पर भी जाएं जहां पर भीड़ इकट्ठी हो रही है, लोग अगर बिल्कुल पास पास खड़ रहे हैं, तो प्लीज इस बात से झिझकिए नहीं उनको बोलने में कि दूर हो जाए। When I went to bank, I had some urgent work, I had to go to a bank. मैंने देखा लोग मेरे पीछे बिल्कुल पास में आके खड़े हो जा रहे, तो मुझे उनको सबको बोलना पड़ा प्लीज आप मेरे से थोड़ा दूर खड़े हो जाइए, बट उनको बुरा ना लगे कि शायद मुझे लग रहा है कि वो इनको इन्फेक्ट करेंगे। मैंने उनको बोला देखिए मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं बहुत सारे कोविड पॉजिटिव पेशेंट से मिलती रहती हूँ, तो आप मेरे से इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो प्लीज थोड़ा दूर हो जाइए। ये सुनते ही सब लोग दूर हो जाते थे। तो ये आपको भी इनकरेज करना है क्राउड में जाके कि लोग आपसे दूर खड़े हुए और आप भी दूरी मेंटेन करें। सोशल गैदरिंग्स, अननेसेसरली कोई भी सोशल गैदरिंग ना करें। भाई चलो जी आज पार्टी करते हैं, आज बच्चे का बर्थडे है, अरे बर्थडे वर्चुअली भी मनाया जा सकता है, बर्थडे अपने घर के लोगों के बीच में भी मनाया जा सकता है, बर्थडे वैसे मना लीजिए, जरूरी है 50 लोग आपके घर में इकट्ठे होने। इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिनको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, मान लो किसी के घर में डेथ हो गई है, अब वो डेथ में आप सबको मना कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक जो घर के लोग हैं, जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, वो तो आएंगे ही, है ना, उनको तो आप मना नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे भी आप अपने घर में डिस्टेंस मेंटेन करके ही बैठिए, और जितनी भी प्रोग्राम्स हैं वो वर्चुअली ही हो रहे हैं, आपने देखा होगा जितनी भी प्रोग्राम्स हैं सब वर्चुअली हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहे हैं। नेक्स्ट इज, मैं हमेशा कहती हूँ कोविड में दूरी जरूर रखिए, लेकिन फिजिकली दूरी रखिए, इमोशनली सोशली दूरी मत रखिए, बिकॉज इस टाइम पे हमें सबको एक दूसरे की जरूरत है। वी नीड टू बी इमोशनली कनेक्टेड। ये सबके लिए टेस्टिंग टाइम्स है। इतना मैंने डर, इतना खौफ, इतना स्ट्रेस मैंने अपने पूरे 50 सालों में शायद नहीं देखा अभी, जो मैं अब देख रही हूँ। इतने पेशेंट्स हैं जो स्ट्रेस्ड हैं, जिनके अंदर बहुत खौफ है, भय है इस बीमारी का कि मैं बता नहीं सकती हूँ। इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग सब एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड रहिए, और प्लीज कोई भी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन जो आपको सोशल मीडिया पे मिल रही है उसको प्लीज फॉरवर्ड मत करिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो औरत धनिया को साबुन से धो रही थी, तो प्लीज ऐसे वाले वीडियोस को फॉरवर्ड नहीं करिए, क्योंकि वो गलत चीजें हैं, वो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। इंफॉर्मेशन के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, mohfw.gov.in। आपको यहाँ पर हर तरह की इंफॉर्मेशन, आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। और जिनके ऊपर हम टोटली रिलाई कर सकते हैं, इस वाली इंफॉर्मेशन पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे जाकर। अगर आपको कुछ जानना चाहते हैं, ओरली किसी से बात करना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं 1075, और या फिर स्टेट हेल्पलाइन नंबर्स हैं
जिन पर आप कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन कोविड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की टॉक जो मैं आपको देना चाहती थी। अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी हियर, आई गिव यू 10 मिनट्स, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। एंड प्लीज, अगर कभी भी किसी को भी कोई सिम्टम आता है और उसको लगता है कि वो कोविड पॉजिटिव हो सकता है, तो अपने डॉक्टर को वो सिम्टम बताने में या अपनी डिस्क्लोज करने में अपना बिल्कुल हेजिटेट मत करिएगा। मैंने अक्सर देखा, आई न्यू क्वाइट अ फ्यू पेरेंट्स जिनके फैमिली में कोविड हो चुका था, लेकिन जब मैंने उनसे कोविड की हिस्ट्री पूछी तो उन्होंने नहीं बताई। प्लीज डोंट हेजिटेट इन टेलिंग। आप बता के बाकी सबको अलर्ट कर रहे हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को होता है तो प्लीज जिनसे आप मिले हैं उन सबको बताइए। डोंट थिंक दे विल, व्हाट विल दे थिंक अबाउट यू। वो थैंकफुल होंगे कि आपने उनको बता दिया। ठीक है, तो प्लीज हेजिटेट मत करिए और जितना जल्दी हो सके अपने लिए हेल्प ढूंढिए, सीक हेल्प, एंड आई एम ऑल्सो देयर टू हेल्प यू. My number is available with all of you. You can call me anytime. I am available to help you 24/7. और अगर कोई distress feel कर रहा है तो please then also we have a counselor also in the school. You can call her, you can call me, and we will be readily available to help you in any way. So with this, I say a very big thank you to all of you. But before that, मैंने सब precautions की तो बात करी दी, but आपको एक और suggestion मैं देना चाहूंगी. वो suggestion ये है कि मैं चाहूंगी कि आप लोग सब अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने की कोशिश करें. इम्यूनिटी बिल्ड करने का मतलब क्या है? इम्यूनिटी कैसे बिल्ड होगी? मैंने कहा ना कि अगर आपके अंदर वायरस आ गया, आपने खुद ही उससे लड़ लिया, आपने चोर से अकेले ही लड़ाई कर ली, तो खत्म हो, तो वायरस वहीं खत्म हो जाएगा. इम्यूनिटी बिल्ड करने का तरीका ये है कि आप 7 कलर के फल खाइए या सब्जियां खाइए, जितने भी 7 रंग है उनकी, और 6 टेस्ट की फल और सब्जियां खाइए. तो आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है. आपको अपनी डाइट में सब तरह के फल सब्जियां खानी है, स्पेशली द सीजनल फ्रूट. ये मत सोचिए कि इस टाइम में मैं तरबूज खा लूंगी तो बहुत अच्छा होगा. इस टाइम तरबूज में इतने मिनरल्स या इतनी उसके अंदर न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं होगी जितनी सीजनल फ्रूट्स में होगी. इस टाइम जो सेब आ रहा है, संतरा आ रहा है, उसके अंदर ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है रादर देन तरबूज. ठीक है, और कोशिश करिए अपने वजन को कंट्रोल में रखिए. घर में बैठने की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी की कम होने की वजह से बहुत बच्चे, बहुत पेरेंट्स ने कंप्लेन की है कि हमारे बच्चों के वजन बढ़ गए हैं. और वजन बढ़ना एक कोमॉर्बिडिटी में आता है जिसमें वायरस का जो है एक्शन बहुत ज्यादा लीदल हो जाता है. तो मेरी सजेशन ये रहेगी, अपने कार्ब्स पे कट डाउन करिए, अपनी शुगर्स पे कट डाउन करिए, खूब एक्सरसाइज करिए. अब आपको समय मिला है वर्जिश करने का, एक्सरसाइज करने का, मेक बेस्ट यूज ऑफ दैट टाइम एंड एक्सरसाइज. एंड रेगुलर एक्सरसाइज विल हेल्प यू अ लॉट. यानी कि आज मैंने 1 घंटा एक्सरसाइज कर ली, हो गया काम, अब अगले हफ्ते देखूंगा, ऐसे नहीं. अगर आप 10-10, 15-15 मिनट की एक्टिविटी भी डेली करेंगे तो आप फिट रहेंगे. इसके अलावा अपनी नींद पूरी करिए, अपना साइकिल ठीक रखिए, लेट सोना बंद करिए, टाइम से उठना चालू करिए, और अपनी स्लीप जो है 8 घंटे की जरूर पूरी करिए. इसके अलावा अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, और टुगेदर, एंड इफ यू डू ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, वी विल बी एबल टू फाइट COVID-19. And I'm sure I have done my job well, and you all have understood what I'm trying to say and what I have been trying to emphasize here. इसके अलावा मैं सिर्फ मेरा बहुत मन कर रहा है एक कोट से एंड करने का. तो आई वुड लाइक टू शेयर दैट कोट विद यू. खौफे मौत ही है इस दुनिया में, खौफे रब होता तो क्या बात होती. अभी हम सब लोग जो है मौत से तो खौफ में है, डर तो हम सबको लगा हुआ है कि कहीं मौत ना आ जाए, है ना. लेकिन अगर रब से ये खौफ करते और रब को याद रखते, रब से खौफ करने का मतलब है कि कोई गलत काम नहीं करते. अब अगर हम इसको इस ढंग से सोचे, अगर हम मदर अर्थ के साथ भी कुछ गलत नहीं करते, इतना प्लास्टिक हमने बिखेर दिया, सारे मदर अर्थ को प्लास्टिक में लपेट दिया, तो मदर अर्थ ने क्या किया है, नेचर ने क्या किया, हमें प्लास्टिक में लपेट दिया. आप देखिए हॉस्पिटल्स में बिना पीपीई किट के कोई पेशेंट को नहीं देख रहा. आप बाहर जा रहे हैं तो भी अपने ऊपर प्लास्टिक की शील्ड पहन के जा रहे हैं, फेस शील्ड पहन के जा रहे हैं. तो प्लीज उस रब से खौफ रखिए, कोई गलत काम नहीं करिए, मिलजुल के रहिए, और मिलजुल के ही हम इस पैंडेमिक से बाहर निकल पाएंगे. धन्यवाद, मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको. आपने मेरी बात इतने ध्यान से सुनी, और यू गेव मी योर टाइम, यू लिसन टू मी
so keenly. Thank you for that. And good day. And my best wishes once again to all of you. मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ. आप लोग सब स्वस्थ रहें, सेफ रहें, और अगर कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी हो, तो I am available for you 24/7. Thank you so much. Thank you very much, Anshu ma'am. Thank you. Welcome, sir. It was my pleasure. So we can call off the meeting now. Yes, ma'am. Thank you. I'm Okay. ending the